Hello everyone, welcome to Health Global. Today we have with us Mr. Salman Yusuf Khan. He's a celebrated Indian dancer, choreographer, actor and television personality known for winning the first season of Dance India Dance in 2009. Born in Bangalore in 1985, he has trained in various dance styles, gained national recognition for his dynamic performances on stage and screen. Khan's career spans successful appearances in Bollywood dance films such as ABCD, Street Dancer 3D, along with notable roles as a mentor and judge on several popular reality shows. Let's deep dive into his journey. I am Samek and you're watching Mindspeak. Let me begin by asking you, what inspired you to become a dancer and a choreographer? Well, actually, dance happened to me. It was never planned or I never envisioned it growing up. Obviously, मुझे ना इज्जत बड़ी कमानी थी. I always wanted to be famous, and I've been very vocal about it childhood से. I wanted people to know me by my name and not कहते ना ये फलाने फलाने के बेटे हैं. I wanted people to know कि ये फलाने फलाने के पिताजी और माताजी हैं. I wanted that, and respect was everything for me. Dance happened when I saw Prabhu Deva sir for the first time in my sixth standard dancing on the song Mukabla. Of And I course. was like, how can somebody move like this? और हमारे हमारे घर में I've been born and brought up in Saudi Arabia. तो हमारे घर में थर्सडे फ्राइडे जो सऊदी में पहले आज से 30 साल पहले जो छुट्टियों का दस्तूर होता था थर्सडे एंड फ्राइडे. दुनिया भर में सैटरडे संडे होता है, सऊदी में पहले था थर्सडे फ्राइडे. थर्सडे नाइट हमारे घर में वीसीआर लगता था, वो कैसेट आती थी और कैसेट के अंदर फिल्म देखी जाती थी बॉलीवुड. दैट वाज आवर कनेक्ट टू इंडिया. और वहां पे जब मैंने पहली बार प्रभु देवा सर को डांस करते हुए देखा तो फिर वो कैसेट वापस गई नहीं, वो हमारे पास ही रह गई. रिवाइंड फॉरवर्ड प्ले कर करके जो मैंने उनका पूरी कोरियोग्राफी अपनाई, उसके बाद हर शादी, हर बारात, हर पार्टी में एक लड़का डांस कर रहा है मुकाबला, वो मैं था. एंड फॉर मी इट्स सो surreal, इट्स सो ब्यूटीफुल कि द वर्ल्ड इज कम अराउंड. आज प्रभु सर एक ही इज वन फोन कॉल अवे, वी सिट एंड प्ले चेस टुगेदर. So he's been the reason why I started dancing. So you've worked with him so much. Can you share the experience? Like, how is he and how is to work with? He's such a calm energy. He's such a calm energy. A man of very less words, but a big prankster. He बहुत उनके अंदर एक छोटा बच्चा है आज भी जो बहुत सारे pranks करता है, जो बहुत छेड़छाड़ करता है. I'm very stylish, and I just find so inspiring कि एक इंसान जिसने इतना मुकाम हासिल किया है अपनी जिंदगी में, to be so humble and to be so क्या बोलते हैं, hungry still to learn. It's amazing. क्योंकि I feel like जो लोग कहते हैं ना I'm the best, I've done it all. I think that's the end of जो, क्योंकि you can never be all knowing. All knowing सिर्फ एक ही ऊपर वाला. We can only keep learning till we die. And that thing of his inspires me a lot, that he still wants to learn. He's amazing. Winning Dance India Dance Season 1 is a huge milestone for you. What do you think about it? Like, looking back now. I feel very blessed. I feel very humbled, and I feel very thankful for the experience that Upawala has given me. But I don't live in my past. It's way behind me. Of course. It's been 16 odd years. I don't think about it. I don't even know कि अब मेरी वो trophy कहाँ पे, यहाँ है कि Bangalore में. I have to still figure it out. But I've been very thankful to the audience. क्योंकि मैं आज भी बोलता हूँ कि I wasn't at that time also. I wasn't India's best dancer. I was India's favorite dancer. तो बहुत सारा जो प्यार मिला, it was very overwhelming, and it definitely gave me a kickstart to do a lot of things in my life. और I feel very a lot of gratitude कि हम ना एक डांस को एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन की तरह इंडिया में हम लोग सेट कर पाए. क्योंकि डांस या डांस से पहले कभी भी डांसिंग को एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं माना जाता था. अरे नाचता है, अरे ये. But after Dance India Dance in this entire decade that's passed, I have big engineers, doctors, industrialists who tell me we want our children to be like you, Salman. Where should they train? That respect, I think, जो हमने शुरुआत की है, Alhamdulillah, I feel very, again, a lot of gratitude for that. ABCD से Street Dancer 3, तो choreographer से acting, ये transition कैसा रहा? Well, I always wanted to act क्योंकि हर dancer और हर director को लगता है कि they can act. I'll tell you why. Because every time we dance, we emote, right? It's like mime. हम emote कर ही रहे हैं डांस में. हम प्यार दिखा रहे हैं, हम गुस्सा दिखा रहे हैं, हम उदासी दिखा रहे हैं, हम angst दिखा रहे हैं. हर emotion से हम perform करते हैं. Acting के अंदर the same thing. Technically, you have to learn a few things. Obviously, light कैसा लेना है, कहाँ लेना है, continuity. But you have a vocal cord to it.
एक्टिंग में आपने एक वोकल कॉर्ड ऐड हो जाता है, आपने एक मॉड्यूलेशन वॉइस का ऐड हो जाता है. तो obviously every dancer loves to explore acting, and that also I had it in me. That transition wasn't very difficult, it wasn't very easy, but obviously to add a few tools to myself, I did add it. And हम कभी कैमरा शाई होते नहीं है, आपको पता है, परफॉर्मर्स डांसर्स हमें, और हम वन टेक आर्टिस्ट हैं. एज डांसर्स वी आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग लाइव परफॉर्मेंसेस, हर इमोशन, हर मूवमेंट, एवरीथिंग इन वन गो. तो हमारे लिए तो एक्टिंग ऑन सेट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हमें बहुत बहुत सारे टेक्स मिलते हैं. तो या मैं आपको पूछना ही चाहता था कि परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज एंड ऑन स्क्रीन में आपका अप्रोच कैसा रहता है? वेल, इट्स वेरी डिफरेंट. व्हाई डू यू थिंक ऑल दिस थिएटर एक्टर्स हैव दिस एयर अबाउट देम कि हम थिएटर से आए हैं? क्यों? भाई वन टेक में करके दिखाओ ना. इतने सारे इमोशंस, इतने सारे डायलॉग्स, इतना पूरा स्क्रिप्ट मेमोराइज करके एक लाइव प्ले में करके दिखाओ ना. नहीं कर पाएंगे. आई थिंक अच्छे से अच्छे हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स को अगर दे दिया जाए ना 1.5 hour का प्ले, आई एम नॉट श्योर इफ दे कैन पुल इट ऑफ. At least the new generation. I'm sure the old generation has done a lot of theater, but I think that's the strength that comes from doing live performances, because आप इतना घिस चुके होते हो उस चीज के अंदर, and to have that switch on switch off in you, that then on set with those multiple angles and cameras, it's easy to recreate it again and again and True. just get better at it. डांस कॉन्सेप्ट कोई जब आप प्लान करते हो, कोई भी कोरियोग्राफी आप प्लान जब करते हो, फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला कि आप इमोट करते हो लॉट ऑफ इमोशंस, तो फॉर एग्जांपल लाइक बीट हैप्पीनेस और सैडनेस, तो आप इसमें मतलब कैसे वो सब एट्रीब्यूट्स को जोड़ के वो कॉन्सेप्ट को लाते हो? कोई प्रैक्टिस है, कैसे आप सोचते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले तो हमें, अगर आप रियलिटी शोज की बात करो तो रियलिटी शोज में हमें ऑलरेडी एक टास्क दिया जाता है, जैसे कि नवरस. नवरस हमारे इस आने वाले एपिसोड में आपको सारे नवरस एक्सप्लोर करने हैं, तो हम एक रस उसमें से चूज कर लेते हैं. पर आप जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप हाउ डू यू डिसाइड, हाउ डू यू कॉन्सेप्चुलाइज, गाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ डांसर, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ परफॉर्मर. क्योंकि गाना हमारी आवाज बनता है, हम उसके एक फिजिकल मूवमेंट बनते हैं, गाना हमारी आवाज बनता है. तो उस गाने को बार बार सुनना और उस गाने में से कोरियोग्राफी निकालना, वही एक, उसी अदाकारी को कोरियोग्राफी कहते हैं. और ये क्रिएटिविटी आप, इट्स अ वेरी, क्या बोलते, ये चैट जीपीटी कभी कॉपी नहीं कर पाएगा. जिस तरह से हम एज एन इंडिविजुअल बैठ के उसको हमारे एक परसेप्शन से, हमारे एक उस इमोशन को उस लिरिक्स के साथ जोड़ते हैं, ये चीज कैन नेवर बी कॉपीड. So that is the most beautiful thing about being able to choreograph a dance sequence. And that वो धीरे 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 करके आपको तराशना पड़ता है, वक्त लगता है, पर हो जाता है. जब कोई वेस्टर्न कोई डांस होता है, उसका कोई इन्फ्लुएंस रहता है जो आप ऐसे कुछ फॉलो करते हो कोई आर्टिस्ट को? आपने जो कपड़े पहने, मैंने कपड़े पहने, देख लो हम इतने हेवीली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड हैं. हमारा देश जब से अंग्रेज छोड़ के गए, हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड ही हैं. इनफैक्ट मैं एज अ सऊदी चाइल्ड आपको ये बताऊं कि जितने भी हम बाहर मुल्क में रहे लोग, वी आर मोर पेट्रियोटिक देन पीपल एक्चुअली इन इंडिया. क्योंकि मैं जब इंडिया आया, मुझे तो कल्चर शॉक लग गया. हम तो सऊदी में रहते हुए हम देखते थे सलवार कमीज, हम देखते थे भाई साहब एथनिक वेयर. यहाँ पे आके तो मिनी स्कर्ट्स, वेस्टर्न वेयर. मैं आई वेंट इनटू अ कल्चर शॉक व्हेन आई शिफ्टेड टू इंडिया कि भाई, या तो हम कितने मॉडर्न है लोग. तो ऑफ कोर्स देयर इज अ हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लाइकनेस टुवर्ड्स वेस्टर्न, और वही बिकता है जो दिखता है और जो लोगों को पसंद आता है. करेक्ट. और हम सब उसी एक रेस में लगे हुए हैं ना, कि ऑडियंस को हमारी क्या पसंद है. आज आप जो देख रहे हो, आप चाहे आप टिकटॉक देख लो या इंस्टाग्राम देख लो या कोई भी रियलिटी शोज देख लो, हम वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑडियंस को पसंद आए. और ऑडियंस में हिट तो फिर हम हिट. तो अब ऑडियंस को जब दौर आता है वेस्टर्न का, तो हम उसमें घुस जाते हैं. ऑडियंस को फिर जब दौर आता है एथनिक का, तो फिर हम उसमें घुस जाते हैं. ऑडियंस को जब दौर आता है पेट्रियोटिज्म का, तो फिर हम उसमें घुस जाते हैं. एज ए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वी ओनली cater to what the audience wants and what the audience is appreciating, है ना. So I think that answers your question. If I asking, whom do you think is one of the best dancer in Bollywood? Okay, ये मुझे पूछना ही था आपसे. According to you? Undoubtedly, it's Hrithik Roshan originally. Prabhu Deva sir is a part of Bollywood now. Of course, he's number one for me. पहले वो South industry के थे, फिर वो Bollywood में आ ही गए. So number one for me. And then Hrithik Roshan sir. Hrithik Roshan sir only for the fact कि वो कोई भी choreography अपना लेते हैं. And there is a individuality. He doesn't look like he's copying Michael Jackson. Or he doesn't look like he's copying XYZ. He looks like Hrithik Roshan when he performs.
And I think that's why Prabhu Deva sir is Prabhu Deva, the only one in the world, right? बहुत एक जमाने पहले एक आया था दौर में, they used to call him the Michael Jackson of India. I Yes. always stood by saying कि sorry, he is the Prabhu Deva of India. Michael Jackson, we love him, that will never die, but he is the Prabhu Deva of India. So वैसे I feel Hrithik Roshan sir is number one for me, and till date, there's nobody else who can beat him. Okay, you have participated in 3 seasons of Jhalak Dikhla Jaa, finally winning the 6th one as a choreographer. The journey कैसा रहा? Speaking season 3, season 4, season 5, season 6 as a contestant, season 7 as a creative head, season 8 as a challenger, season 9 as a contestant. So I've done 7 seasons of Jhalak Dikhla Jaa. And I won only one. जी, बाकी सब में मैं second position पे आया हूँ. ये journey कैसा रहा? Jhalak Dikhla Jaa. It's beautiful. The journey was beautiful. क्योंकि immediately after Dance India जीतने के बाद जब मुझे झलक का ऑफर आया, I had no idea how to do a reality show choreography, क्योंकि मैं choreographer नहीं था. और फिर मैंने रेमो सर से पूछा, ऐसा कोई भी डिसीजन आता तो मैं रेमो सर के पास जाता हूँ. और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, अभी डांस इंडिया डांस जीत गए हो तो कोई और डांस रियलिटी शो मत करो, अगर हार गए तो लोगों को लगेगा तुमने तुक्के में जीत गए. तो फिर रेमो सर ने मुझे एक ही बात बोली कि देख सलमान, जो भी लोग तुझे बोल रहे हैं ना काम ना करने के लिए, उनसे एक बार पूछ लेना कि क्या वो तुम्हारे घर का रेंट पे करेंगे या तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे. Very true. तो गो आउट देयर, वर्क, काम करो, काम से काम आएगा. प्लीज डू व्हाटएवर यू आर गेटिंग योर वे. So that's when I picked up Jhalak Dikhla Jaa, and I discovered myself that I'm really good at choreography. Of course. And I think the entire journey of Jhalak has been amazing. It's given me so much empowerment. और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी सीजन है जिसमें टॉप स्कोरर में नहीं रहा हूँ. So I think it's been a great journey for me. Okay, I'm sure you must be having a lot of memorable performances. But if I ask you for just one, which is very close to your heart, so which one? Well, unfortunately, none of these performances are online right now. Even for a fact, if I want to show it to my son, क्योंकि जब से Jio ने acquire किया Colors को, and the entire data has been locked out, so we don't have access to anything. तो मेरी entire hard work of 15 years is now एक ऐसे पिटारे में जो is between two channels. But coming back to your question, one of my most memorable performances would be the first time I ever, in Indian history, a horror act that was done while performing in a dance act was done by me. That was the first ever horror act. और वो एक्ट के बाद 2 दिन के बाद वो एक्ट जब खत्म हुआ तो 20 मिनट्स के लिए पहली बार झलक में स्टैंडिंग ओवेशन मिला. For 20 minutes people kept clapping. Wow. Madhuri ma'am was in shock. Karan sir was in shock. 2 दिन बाद भी मुझे माधुरी मैम का मैसेज आता है कि I'm not able to sleep because of your act, Salman. What an act have you done? So that impact Amazing. that was created was amazing, and I think that stayed with me. Okay, what has been your greatest learning from all the reality shows that you have done so far? Well, my greatest learning is that you have to be versatile in this industry. You cannot be क्या बोलते हैं, it's really important to be a jack of all, king of none. So why do I say that is because you can't be fixated on one genre in this industry. क्योंकि यहाँ पे ना मौसमों की तरह टैलेंट निकल के आता है, भर भर के टैलेंट. तो I've been able to be busy in my life because I've been a dancer, I've been a live performer, I've been a choreographer, I've been a director, I've been an actor. So एक project छूटे दूसरा, दूसरा छूटे तीसरा, I've been able to do things. If I was only a dancer, I don't think I would have made it so far in this industry. So that's why I say it's very important to be versatile. Even as an actor, you can be an actor, you can be a director, you can be a writer, but you just learn to be versatile is what I believe. It's my personal perspective. I respect each one to their own, but this is what worked for me. But do you really feel like, for example, somebody wants to enter the industry, that person has to be versatile? Like, for example, he loves dancing, but just doing dancing, it will be very difficult for him to survive. Do you feel it's like that? Because it will be a good medium to suggest our viewers, like, what they should do. यार हमारी जनता बहुत स्मार्ट है. अब आपने बात उठाई डांसिंग की. आप मुझे बताओ, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ऐसा कौन सा घर नहीं है जिसमें एक डांसर पैदा नहीं हुआ है? अंकल भी डांस कर रहे हैं, आंटी भी डांस कर रहे हैं, उससे भी तो डांस ही कहते हैं. और मैं जो करते आया अपनी जिंदगी, उसे भी डांस कहते हैं. बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस डांसिंग. मैंने 15 साल लगाए डांस सीखने,
टेक्निकली ट्रेन करने में, एंड टू बी टेक्निकली स्ट्रांग एंड साउंड कि दुनिया की मैं कोई भी कोरियोग्राफी आई कैन डू इट राइट नाउ, फिर कोरियोग्राफर कोरियोग्राफी, और एक ऐसा डांसर बन जाओ आप जिसमें आपको इमीडिएटली कोई चीज करने से आपको हाइप मिल गया, and you've got so many followers and you become really famous. How do you sustain it after a point? And True. then what next level do you take it to? How? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बी वर्सेटाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वर्सेटाइल, क्योंकि जस्ट फॉर दैट फ्यू मिनट्स ऑफ फेम, और जैसे कि आजकल आज भी आपको मुझे आप डांस इंडिया डांस की बात कर रहे हो आज, एंड आई एम अमेज्ड कि आपने डांस इंडिया डांस की बात उठाई, बिकॉज 16 साल पुराना चीज आज कितने रियलिटी शोज आते हैं, कितने जाते हैं, उनमें जी से कोई एक डांसर का नाम आप मुझे बताएं, मुझे खुद नहीं याद होगा. I will not, because you as a contestant have not put enough effort in learning everything. आपने एक 4-5 मूव सीख लिए, आपको लगा शो पे जाऊंगा फेमस हो जाऊंगा, आपने वो 4-5 मूव कर लिए शो पे, आप फेमस भी हो गए. वो 4-5 मूव के बाद क्या? You can't keep doing that 4-5 moves for the rest of your life, right? उसके बाद क्या? true true Either you upgrade, upscale, or you diversify. Diversifying is very important आज की डेट. do you think dance reality show today, I'm talking about today, okay, ये real talents को forefront पे लाते हैं? Honestly speaking, they do give them platform, पर मुझे नहीं लगता कि टैलेंट में आज की डेट में इतना दम है कि वो उधर से एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को ले जा पाए. रियलिटी शोज अपना काम कर रहे हैं, वो बड़ा ही स्मार्ट काम कर रहे हैं, वो ऑडियंस को वो दिखा रहे हैं जो ऑडियंस देखना चाह रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि लोग कई अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आए, एक चांस ऑफ लाइफ उन्हें मिले, पर उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, दैट शुड बी एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई भी रियलिटी शो आपको हाथ पकड़ के जिंदगी भर के लिए घसीटते हुए नहीं लेके जाएगा. डांस इंडिया डांस ने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद इमीडिएटली वो सेकंड सीजन की तैयारी में लग गए. नोबडी बॉदर्ड कि सलमान यूसुफ खान क्या करने वाला है जिंदगी में, तू क्या, किसी ने बिठा के ये भी नहीं बताया कि भाई तू जिंदगी में आगे ये कर, ये कर, तेरे लिए अच्छा है, कुछ नहीं. आपने जीता, आपको प्राइज अमाउंट मिला, हाँ हाँ कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट शो. ठीक है, फेयर इनफ, आई अप्रिशिएट इट, इज आई गॉट दैट प्लेटफॉर्म, बट डोंट बी डिल्यूजनल. हमारे ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूंगा कि ख्याली दुनिया में मत जियो. डांस के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में आज बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर किसी के पास खुद का यूट्यूब चैनल है. कोई प्रोड्यूसर पे भी डिपेंडेंट नहीं है. कोई किसी को लगता है कि अगर मैं टैलेंटेड हूँ, वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल रहा है, वो अपनी खुद की कमाई कर रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं. We have big examples in our life, established people, really well off financially, reputedly, have shifted their entire thing to YouTube to make a content for themselves. For example, Farah Khan ma'am, how wonderful is she doing for herself with the whole cooking show? A cooking, dance, direction, like सब कुछ. 3 different genres है. It's completely different, but it's work for her, right? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हैव दैट शार्प आई फॉर योर सेल्फ कि यार मैं किस किस चीजों में अच्छा हूँ, या मैं किस किस चीजों में अच्छी हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, जो ऑब्वियसली एक रिस्पेक्टेबल भी हो और जो लोग अप्रिशिएट करें, एंड यू विल फाइंड योर आंसर्स. Please tell us about some of the challenges that you have faced in your journey. देखिए, चैलेंजेस तो 100% रहे हैं, और बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे हैं. फर्क ये है कि मैं बस उसे स्ट्रगल का नाम नहीं देता, क्योंकि जीरो से लेके अब तक ऊपर वाले ने दिया ही है, so I would never call it a struggle, and it's been a beautiful journey for me. So challenges has been many, because आप as an artist you live in a bubble, a beautiful bubble, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं दुनिया में बहुत अलग हूँ, और मैं अपना एक नाम बना सकता हूँ, और मैं ये चीज कर सकता हूँ. Very important to keep people who are very real and true to you, जो आपको आपकी असलियत दिखाए, and people who are positive. क्या है, कोई भी एक नेगेटिव आदमी आके एक बबल को फोड़ेगा तो बबल फूट जाएगा, देन हम वही फिर रैट रेस में लग जाएंगे, जो आज मैं अपने बिल्डिंग के बाहर देखता हूँ 1000 करोड़ लोग लगे हुए हैं कि भाई कपड़ा, गाड़ी, मकान, 9 to 5 जॉब, बी सेफ. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि यार हाउ डू यू लिव अ लाइफ लाइक दिस आफ्टर एवरी प्रोजेक्ट, बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाट नेक्स्ट, है ना. तो ऐसे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग लाइक दिस, क्योंकि फॉर देम that month end salary is important, इतना saving में जाएगा, इतना उनकी EMI में जाएगा, इतना इसमें. We don't live a life like that as an artist. We don't. So the challenge over here is to how do you keep yourself, your motivation, your belief alive with the world saying कि you are not logical. हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, how the hell will you make it? I am an example. If you believe in yourself,
और आप इतनी शिद्दत, जुनून और पागलपंती से उसको करो, और इज्जत से, हाँ, इज्जत और आबरू से, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लाइफ में। किसी के सामने सर झुकाया नहीं आज तक, किसी के पैर नहीं छुए आज तक, किसी को कुछ नहीं गलत बोलना पड़ा, कुछ नहीं करना गलत पड़ा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेड इट ना। सो इट इज पॉसिबल. You have to really believe in yourself and protect your dreams and yourself from negative people. I think that is the challenge, biggest challenge. Second challenge is you have to understand that us as an industry is A, very competitive, and B, it's not a corporate. It is not with people who are rather educated. बहुत कम लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में जिन्होंने एक फॉर्मल एजुकेशन लिया है, जिनके एटिकेट्स होंगे। सिर्फ फराटेदार इंग्लिश बात कर लेने से उसको एजुकेशन या विजडम नहीं कहते, है ना। और गुची, अरमानी, प्राडा पहन लेने से आप एजुकेटेड और ये नहीं हो जाते। So you have to understand we have all sorts of weird people in this industry who have to be dealt in the most sensible way possible. अब ना पर्सपेक्टिव अलग अलग है यार। सेंसिबल की मैं परिभाषा बता ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए सेंसिबल कुछ और है, सामने वाले के कुछ और है। तो ना एक पागल दुनिया है और अतरंगी लोग आपको मिलेंगे। यू जस्ट नीड टू बी वेरी गुड एट डीलिंग विद पीपल, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू। यू हैव टू हैव दिस। और हमें बचपन से कोई भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि लोगों के साथ कैसा डील करें। हाउ डू यू डील विद पीपल, हाउ डू यू अंडरस्टैंड सामने वाले, रीड बिटवीन द लाइंस। जो वो बोल रहा है वो भी समझो, वो जो नहीं बोल रहा है वो भी समझो। इसकी एक अलग स्कूलिंग होनी चाहिए हमारे इंडस्ट्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाला जो बोल रहा है वो भी समझो, जो नहीं बोल रहा है वो भी समझो। ये समझ आने में वक्त लगेगा आपको, पर आप समझ जाओगे वहां से कह रहे हैं। For any talented artist, be it like dancer or a singer, हर किसी का एक रेंज होता है, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी फील्स लाइक दे फील लिटिल चैलेंज इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग दैट रेंज। ओके, मतलब हर किसी को और अपना रेंज को बढ़ाना है और बढ़ाना है। तो लाइक व्हाट डू यू डू इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन? आई थिंक आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट फेज राइट नाउ, क्योंकि डांसर की तरह जीत गए आप, कोरियोग्राफर की तरह जीत गए आप, जज भी बन गए आप, अब अभी जाके शो प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। तो मतलब भाई साहब, डांसर, कोरियोग्राफर, एक्टर, सॉरी डांस के दायरे में रहते हैं। डांसर, कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर, डांस जज एंड डांस क्रिएटिव हेड ऑफ अ रियलिटी शो। और क्या बचा? और एज अ डांसर स्टेज पे हमने आग भी लगा दी, हमने पानी भी बरसा दिया, हमने हर चीज कर दिया। व्हाट नेक्स्ट? आई फील हियर यू गो बैक टू स्क्वायर जीरो, शून्य फिर, एंड देन स्टार्ट लर्निंग अगेन। क्योंकि पिटारे में जितना भी था सब तो आपने दे दिया ना। क्या करोगे और इससे ज्यादा? कुछ नहीं, फिर आप सीखोगे। तो आई थिंक every time you feel stuck, go back to the drawing board and start learning. Even if you're not passionate enough to go back to learning the same thing that you've created an empire in, start learning something new. अपने आप को रिवाइव करो और कुछ नया सीखो, नया सीखने की कोशिश करो, जिसमें आप इवेंचुअली वही पैशन क्रिएट कर पाओ। इज ऑल आई कैन से। My last question to you, a word of advice to the aspiring dancers who wants to come to this industry. As a dancer, please work on multiple dance styles. Don't be constrained to one dance style. Purely as a dancer. Now, I'm not telling you eventually आप acting में घुसना है। As a dancer, just let's stick to dance. As a dancer, please try to learn a lot of dance styles so that दुनिया का कोई भी कोरियोग्राफर आके जब आपके सामने खड़ा हो, या कोई भी रियलिटी शो में आपको कोई भी असिस्टेंट दिया जाए बोलने के लिए कोरियोग्राफ, you will be able to adapt to their style. You will be able to, आप पानी की तरह बन जाओ कि कोई भी जार, कोई भी ग्लास में आपको डाला जाए तो आप उसका शेप ले लो। तो प्लीज बी वर्सेटाइल इनफ, ट्राई अवॉइडिंग इंजरीज, तो कीप योर टेक्निक वेरी स्ट्रांग। क्योंकि एज अ डांसर आफ्टर द एज ऑफ 35, आई एम टेलिंग यू, ऑल योर इंजरीज विल कम बैक, एवरीथिंग स्टार्ट्स एक्टिंग अप। मुझे पता है, फ्रॉम द एज ऑफ, आई स्टार्टेड डांसिंग व्हेन आई वाज 17, फ्रॉम 17 till 35 मैंने अपने बॉडी को इतना रगड़ा है। और obviously I didn't take care of it much because back to back reality shows, recovery का time नहीं, every week you have to perform, get that score of 30, win a show। उस जुनूनियत में मैंने अपने बॉडी को जो मैंने हार्म किया है, वो अब सारा चीज is coming back right now। So make sure you don't get too injured because that injury can end your career। So that's what I say. Be versatile, be careful with injuries, and work on your diction. आप किस तरह से बात करते हो जब आप माइक पकड़ते हो एज अ परफॉर्मर। बी दैट ऑल राउंडर, लुक गुड, हैव अ गुड स्किन, drink enough water, take care of yourself because you're a performer
And when a performer ever has to speak, they should also speak golden words. At least इतना तो अपने आप को सिखा लो कि आप सही सलीके से बात कर रहे हो. So these are the 3 pointers as of now, just focusing on as a dancer. Salman ji, it was lovely talking to you. बहुत मजा आया. Okay, very insightful. Thank you so much for the time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Lovely meeting you. Thank you. you.